As you know, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. And I said, if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. Has to make a deal with the United States. It was a mistake for China to retaliate. The president, when America is punched, he punches back harder. That's why there will be 104% tariffs going into effect on China tonight at midnight. हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसकी वजह से भारत सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। दुनिया का टैरिफ वॉर 9 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने भारत पर 27%, चीन पर 104% और दर्जनों ऐसे देशों पर भारी टैरिफ लगाए। जवाब में चीन ने अमेरिका पर 84% टैरिफ अनाउंस कर दिया। इस इकोनॉमिक वॉर का असर ग्लोबल मार्केट पर भी भारी पड़ रहा है और भारत सहित दुनिया के सभी देश इसकी चपेट में है। भारत का शेयर मार्केट क्रैश हुआ। इंडिया ने कहा कि हम बढ़े हुए टैरिफ इंपैक्ट की स्टडी कर रहे हैं और ट्रेड डील को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन सब के बीच क्या इंडिया के पास कोई अपॉर्चुनिटी भी है? इस टैरिफ वॉर में भारत कहां खड़ा है? इसका असर हमारी मार्केट पर क्या है और भारत अमेरिका से कैसे निपटेगा? साथ ही हम ग्लोबल मार्केट ट्रेड्स भी देखेंगे। यूएस सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने प्रेसिडेंट ट्रंप पर करप्शन के आरोप लगाए। वीडियो ऑन स्क्रीन। Donald Trump is trashing our economy. First, Donald Trump imposed across-the-board tariffs. Then, just a few hours ago, he dropped those tariffs to 10% on everyone and moved the tariffs up to 125% on China, up from 105%. He sent out a message to his billionaire buddies. He posted, "This is a great time to buy," in all caps. Was that market manipulation? Was it corruption in plain sight? उन्होंने बोला, क्या ट्रंप ने टैरिफ फ्लिप फ्लॉपिंग से लोगों को फायदा पहुंचाने में मदद की है? सीनेटर का कहना है कि यह एक निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की तरह दिखता है और इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। पहले आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो देखें। Yeah, go ahead, please. Sir, would you consider exempting some U.S. companies, maybe some larger companies who have been hit hard in the markets the last few days during this 90 days? As time goes by, we're going to take a look at it. There are some that have been hard. There are some that, by the nature of the company, get hit a little bit harder, and we'll take a look at that. Yeah. Just instinctively, more than anything else. I mean, you almost can't take a pencil to paper. It's really more of an instinct, I think, than anything else. तो शुरू करते हैं अमेरिका के टैरिफ से। अप्रैल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हर उस देश पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे जो अमेरिकी सामानों पर ऊंची ड्यूटी लगाते हैं। भारत पर 27% टैरिफ लगा क्योंकि अमेरिका का दावा है कि हम उनके सामानों पर 52% तक टैक्स लगाते हैं। लेकिन अमेरिका ने 104% टैरिफ लगा के सबसे बड़ा झटका चीन को दिया। चाइना पर पहले 20% टैरिफ लगा हुआ था और फिर ऊपर से 84% टैरिफ और ऐड कर दिया गया। चाइना भी मानो जैसे रेडी बैठा है। चाइना पहले ही बोल चुका है कि हम हर तरीके से वॉर के लिए तैयार हैं और अमेरिका के 104% टैरिफ के जवाब में चीन ने भी बिना कोई देर किए अमेरिकी सामानों पर 84% टैरिफ लगा दिया। फॉक्स की न्यूज़ देखिए। There's an item in the New York Post that we all have in front of us. It's an exclusive story, and it talks about how, with these 104% tariffs that went into effect, we think that China is going to have to pay for it, but it tells a story of a special needs toy importer. And when the tariffs went into effect at midnight, his tariff, he's been paying a tariff because he gets stuff from China, $26,000 a year. His tariff bill went from $26,000 at midnight to $346,000. And that's money he's going to have to come out of his pocket. It sounds like he's going to have to go ahead and close down part of his business. ऐसा लगता है कि ये टैरिफ वॉर अब दो सुपर पावर्स की जंग बन गया है और इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ रहा है। ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है वो आगे देखेंगे, लेकिन पहले भारत की स्थिति समझते हैं। अमेरिका ने जैसे ही ये टैरिफ वॉर शुरू किया, ग्लोबल मार्केट में भूचाल सा आ गया। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक 9 अप्रैल से स्टॉक मार्केट्स और डूबने लगे। यूके का
FTSE 100 231 पॉइंट गिरकर 7,679 पर बंद हुआ, 2.92% डाउन गया। जर्मनी का डेक्स 3% और फ्रांस का कैक 40 3.3% नीचे गया। अमेरिका का S&P 500 शुरू में 0.4% गिरा और डॉ जोन्स 0.7% डाउन हुआ। हालांकि बाद में थोड़ा रिकवर किया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। एशिया में जापान के निक्केई और सिंगापुर के स्टेटस टाइम्स भी 7 से 8% डाउन गए। भारत का हाल क्या हुआ? BSE सेंसेक्स 2,227 पॉइंट गिरकर 73,137 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 743 पॉइंट नीचे गया, 22,161 पर बंद हुआ। ये ट्रेड बताते हैं कि टैरिफ वॉर से ग्लोबल इकोनॉमी डगमगा रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। तो भारत का शेयर मार्केट क्यों क्रैश हुआ, चलिए डिटेल में देखते हैं। भारत का शेयर मार्केट भी इस टैरिफ वॉर की मार से बच नहीं सका। जब अमेरिका ने 104% टैरिफ चीन पर और 27% भारत पर लगाया तो विदेशी निवेशकों ने भी पैसा निकालना शुरू कर दिया। सेंसेक्स में 2.95 की गिरावट आई और टाटा स्टील, L&T, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स 5 से 7% तक गिर गए। टेक्नोलॉजी सेक्टर जो अमेरिका पर डिपेंड करता है 7% तक डाउन गया। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी 4 से 6% तक नीचे आ गए। रुपये की वैल्यू 85.83 तक पहुंच गई, जो आयात को महंगा बना रही है। इसका कारण ग्लोबल ट्रेड टेंशन और FPI का आउटफ्लो था। लेकिन क्या यह सिर्फ नुकसान की कहानी है या भारत के लिए मौके भी हैं? इस सवाल का जवाब अगले सेक्शन में देखते हैं। तो इस टैरिफ वॉर में भारत कहां खड़ा है? ये भारत के लिए दो-धारी तलवार है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। 2023 से 24 में 35 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था। 27% टैरिफ से हमारे जेम्स एंड ज्वेलरीज, ऑटो पार्ट्स और टेक्सटाइल महंगे हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ चीन पर 104% टैरिफ का फायदा भी भारत को मिल सकता है। अमेरिकी कंपनियां अब भारत में सस्ते ऑप्शंस ढूंढ सकती है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में। ग्लोबल ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाए तो एक बड़ा मौका बन सकता है। लेकिन चुनौती यह है, क्या हमारे सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार है? इसका असर भारत पर कैसे पड़ रहा है, वो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि यह टैरिफ भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है। पहला, एक्सपोर्ट पर असर पड़ रहा है और हम हर साल अमेरिका को $77 बिलियन का सामान भेजते हैं, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल का बड़ा हिस्सा है। 27% टैरिफ से ये प्रोडक्ट्स महंगे होंगे और हमारा मार्केट शेयर घट सकता है। दूसरा, रुपये की गिरावट 85.83 तक पहुंचने से आयात महंगा हो रहा है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तीसरा, स्टॉक मार्केट में अस्थिरता। विदेशी निवेशक घबरा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि फार्मा सेक्टर अभी भी टैरिफ से बचा हुआ है और कुछ सेक्टर्स को मौके मिल सकते हैं। तो कौन से सेक्टर्स प्रभावित हो रहे हैं, चलिए अगले सेक्शन में देखते हैं। चलिए उन सेक्टर्स पर नजर डालते हैं जो इस टैरिफ वॉर से प्रभावित हो रहे हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी 11 बिलियन का सालाना एक्सपोर्ट अमेरिका को 27% टैरिफ से ड्यूटी 20% तक बढ़ सकती है, जिससे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो सकती है। ऑटो पार्ट्स की बात करते हैं। पहले 2.4% ड्यूटी थी, अब 25% तक हो सकती है। यह सेक्टर मुश्किल में है। अब बारी आती है टेक्सटाइल की। चीन पर 104% टैरिफ से भारत को फायदा हो सकता है, लेकिन अपने टैरिफ की वजह से ग्रोथ सीमित होगी। IT सेक्टर की बात करेंगे तो डायरेक्ट टैरिफ का असर नहीं है, लेकिन अमेरिकी स्लो डाउन से प्रॉफिट घट सकता है। फार्मा की बात करते हैं। $9 बिलियन का एक्सपोर्ट अभी भी सुरक्षित है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क है। इन सेक्टर्स का असर जॉब्स और GDP पर पड़ेगा। तो भारत इससे कैसे निपटेगा, अगला सेक्शन इसी के बारे में। अब सवाल यह है कि भारत अमेरिका से कैसे डील करेगा। कुछ संभावित नीतियां हो सकती है, जैसे ट्रेड डील। भारत और अमेरिका एक डील पर बात कर रहे हैं। भारत $23 बिलियन के अमेरिकी इंपोर्ट पर टैरिफ घटा सकता है, जैसे कि विस्की और लग्जरी कार्स। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। यूरोप, एशियन और मिडिल ईस्ट पर फोकस बढ़ाकर अमेरिका पर निर्भरता कम की जा सकती है। तीसरा, मेक इन इंडिया। PLI स्कीम को मजबूत कर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, जवाबी टैरिफ। जरूरत पड़ी तो अमेरिकी प्रोडक्ट जैसे एप्पल और आलमंड्स पर टैरिफ लगाया जा सकता है, जैसा कि 2019 में भी किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सा बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स को बेहतर करना होगा।
ये कदम भारत को एक संकट से निकाल सकते हैं, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी का क्या हाल है देखते हैं आखिरी सेक्शन में। दोस्तों, अमेरिका ने चीन पर 104% का भारी भरकम टैरिफ लगाया। फिर चीन ने भी हार नहीं मानी और 84% का जवाबी टैरिफ अमेरिका पर थोप दिया। लेकिन अब ताज़ा अपडेट यह है कि अमेरिका ने अपने सारे टैरिफ को कुछ वक्त के लिए पॉज कर दिया है। तो क्या हो रहा है इस ट्रेड वॉर में? क्या चीन बाजी मार रहा है क्योंकि उसका 84% का दांव अभी भी मैदान में है, या फिर अमेरिका बस थोड़ा ब्रेक लेकर नई रणनीति बना रहा है? अब ग्लोबल इकोनॉमी पर एक नज़र। अमेरिका के 104% टैरिफ और चीन के 84% के जवाब में रिसेशन की आशंका बढ़ गई है। गोल्डमैन ने अमेरिका में रिसेशन की संभावना 40% बताई है और जेपी मॉर्गन ने 60%। यूरोप और एशिया में ट्रेड डिपेंडेंसी बढ़ रही है, लेकिन भारत के लिए ये मौका भी है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बढ़ाएं तो ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारी हिस्सेदारी बढ़ सकती है। IMF का कहना है कि ट्रेड बैरियर से निवेश और ग्रोथ पर असर पड़ेगा, तो भारत को स्मार्टली खेलना होगा। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका के टैरिफ वॉर की कहानी, जिसमें चीन का 84% टैरिफ का जवाब और भारत का रोल अहम है। ग्लोबल मार्केट्स डगमगा रहे हैं, लेकिन भारत के पास मौके भी हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत इस संकट को अवसर में बदल पाएगा? कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।